पिक्चर दिखाई नहीं दे रहे ना आप? हाँ ठीक है सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर लीजिए सर। राइट। ठीक है सर, आप क्लास स्टार्ट कर Okay. सकते Okay, fine. So, good evening, everyone. Let me just. Good evening, sir. Good evening. So, I'll just start off. Uh, Let me just. Okay, so last time, firstly, we'll try to cover what we have. Then we have few, say, case studies, which we would be taking up in this class. So, Good firstly, evening, we'll. sir. Good evening. So, firstly, we'll take up this few slides that are remaining in this. Then we'll start off with the overall few certain cases which I would like to share it with you. Then I'll start it off with that. Okay, so from this slide, when we are talking about inventory management, so again, as an operations manager, there's a lot of time which goes into when we are like strategizing for these issues, and specifically the issue of inventory, because inventory is one such thing which, as an operations manager, you have to always no keep this in your mind that no. What is my total say materials that are available with me, whether my work is going to be completed in a specified time, or it may be possible that my say my task or my work that it's going to hamper because of say shortage of certain inventory. So inventory is one such thing wherein एक्सक्यूज मी सर। yes, please. सर ये आपने लास्ट ऑनलाइन क्लास में भी यही सिखाया था, मतलब जेआईटी और ईओक्यू मॉडल। अच्छा, we are done with this. यस सर। ओके, सो डिमांड फोरकास्टिंग हो गया था. ये पूरा चैप्टर आपने लास्ट ऑनलाइन क्लास में डन करा था सर। Okay, great. Then I'll skip this. How about forecasting and demand? I think ये भी इसमें we talked about statistical ये भी models. सर हुआ है, ये भी सर लास्ट क्लास में हुआ था। हाँ ये लास्ट सर लास्ट स्लाइड से होना था। यहाँ से यहाँ नहीं से यहाँ सप्लाई से यहाँ चेन से। हाँ जी, इसे बैक कीजिए सर। यहाँ से. यहाँ से सर, यस सर। Okay, fine. So we'll talk about these things. I think somebody have to enter. Okay. Yes, everybody is there. Okay, so herein we are talking about certain principles of lean manufacturing specifically. Why lean? Because they say that no, one of the most important production philosophy which has now taken the utmost importance is lean, because you have to talk about eliminating your waste. Why eliminating waste? क्यों मुझे eliminate waste ही क्यों मुझे eliminate करना है? मैं क्यों मतलब एज एन ऑपरेशंस मैनेजर व्हाई आई हैव टू लाइक ऑलवेज स्ट्रेटेजाइज दैट I have to reduce on wastage. The simple reason behind it is the more you say the more your organization is lean, the more you are towards eliminating the wastage, the more you can utilize the same resources and funds in your system. So it goes on like that, right? So if you eliminate waste, you can improve your overall efficiency. You can deliver maximum value to your customers at the same time. And you are while you are delivering the maximum value,
Similarly, you are also doing one more thing. You are using your minimum resources. Or rather, I can also put it in this way that I am doing the optimum utilization of my resources. So first point which we need to talk about is the continuous flow, wherein we have to, as an operations manager, as a strategist, we need to ensure that my product, it should move smoothly and continuously throughout my, say, production process, and there should not be any kind of delays or bottlenecks should be there, or any sort of waiting should be there. My core principle and objective when I'm talking about the continuous flow is how I can reduce the overall waiting time, how I can minimize my work in progress inventory, as if my inventory should always be available. Like a typical example, if I talk about in continuous flow, is if you look upon a typical car assembly line. So instead of, say, producing cars in batches, each car can move, say, step by step continuously from, say, starting off wherein your parts are being assembled or welded, through painting, through assembly, entire assembly line without stopping. So if suppose one stage slows down, the whole system is affected. So hence you need to process your all those criticalities, you need to balance it out, right? Second, when we look upon the overall say pull systems, when you look upon the overall pull systems, here in when we say that pull systems, we talk about production. It should be, say, based on your actual, say, customer demand. It should not be completely based on your forecast. अभी मैं कुछ case studies I'll also give you wherein you have to apply these principles. So hear it very carefully. So when I talk about pull systems, it should not be नहीं estimate मैंने करा 500 यूनिट बनानी and I go on और मेरी actual demand है 300. So what about 200? Again वो inventory में जाएगा, मेरा उसका एक cost आएगा. Why I have to, like, I have to go over estimation. So you have to be actually very close to your estimations. So your core objective, overproduction, पहला pull system का objective है मुझे overproduction रोकना है, because overproduction is the biggest waste in your lean. कि मैं सब I'm continuing producing, I'm keep on producing and for no reason. So that is the biggest waste in your lean. So you have to always think upon, I have to produce only what is needed and when it is needed. Like for example, say a retail store, if you look upon a typical retail store, uh, say he restocks a product only when a customer purchases it. So if suppose a customer doesn't purchase it, he won't buy it in bulk, and no, he'll keep a, एक retail store कहाँ पे stock कर लेगा, right? Limited space है. He cannot stock all the goods in one place. So he has to be very careful while buying or placing your orders. So customer purchase कर रहा है, मेरे पास suppose X commodity के 10 units हैं, मेरे जब 4 परचेज हो जाएंगे, then I can place an order for another, say, 5 or 6 or whatever is required. But I won't go on, say, over say loading or crowding my shelf space. So your resignals or your reorders are only to suppliers when there's a need. So that is the typical example of your pull system. Now talking about next, third is your standardization. स्टैंडर्डाइजेशन पे जब बात करते हैं तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन, इट सिंपली सेज एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड से प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स फॉर कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी. एक यूनिवर्सल प्रोसेस बना दो. मेक अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, मेक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स. यस, these are the standard procedures which we have to follow. एडवांटेज क्या है अगर ऐसी चीज करेंगे? यू विल रिड्यूस योर वेरिएबिलिटी, you will ensure that your output is very much predictable, right? Like for example, say if you talk about McDonald's, so every burger, if you look upon McDonald's, every burger is made using the same standardized step
and ensuring that each and every burger has the same identical taste, and that is globally. Not I'm talking about India, although don't go for the customization part. मैकडोनल्ड्स का सबसे बड़ा एग्जांपल आता है कस्टमाइजेशन में, जहाँ पे वो अपने बर्गर्स को कस्टमाइज भी करता है। मास कस्टमाइजेशन देखो तो मैक आलू टिक्की इंडिया के लिए कस्टमाइज है, हैम जो है यूके के लिए है, एंड फोक इज फॉर अदर कंट्रीज। तो डोंट लुक अपॉन इन द कस्टमाइजेशन वे, लुक अपॉन इन द स्टैंडर्डाइजेशन वे, कि उसने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बना रखा है, एंड इट हैज जो उसका सपोज एक कोई नॉनवेज बर्गर है जो यूके में भी सेम टेस्ट करेगा, वही इंडिया में भी करेगा, वो डिफरेंट नहीं है। तो इस लेवल पे स्टैंडर्डाइज कर रखा है इस ऑर्गेनाइजेशन ने। तो आपके जो भी ट्रेनिंग है, आपके जो भी क्वालिटी कंट्रोल है, आपके जो भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपको लाना है, वो यूनिवर्सल है अक्रॉस द ग्लोब। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट कि नहीं इंडिया में, इट्स अक्रॉस द ग्लोब। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। For an operations person, there's always a battle between operations, or if you look upon the other departments as a whole, or because many earlier slides I also talked about say cross departmental communications, or say coordinations and cooperations, which is absolutely essential. So when you look upon value maximization, you have your only focus is to add value for your customer. कस्टमर के पर्सपेक्टिव से मैं कितनी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ? वैल्यू एडेड मतलब सपोज मे बी प्रोडक्ट को असेंबल करने में, मे बी से वेटिंग टाइम को करने कम करने में, मे बी मूवमेंट्स और डिफेक्ट्स को ख़त्म करने में, ये सारी चीज़ मैं करके वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, राइट। एक सपोज मैं इसमें यहाँ पे एग्जांपल लूंगा मैं ई कॉमर्स का। सपोज ई कॉमर्स जो है आज के दिन, ई कॉमर्स जो अब वर्ड है उसको भी चेंज कर दिया आज के दिन। मॉडर्न रिसर्चेस इफ यू लुक अपॉन, देयर इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी व्हिच हैज चेंज ई कॉमर्स। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दैट? What is the new word which has changed e-commerce? There's a typical word. E को change कर दिया Q से. E becomes Q and the new word is your quick commerce. So आज के दिन अगर e-commerce जो है, now it has become obsolete. Today organizations, companies, they are focusing on one word, that is your quick commerce. How quickly you can deliver a product, how quickly you can reach to your customer, how quickly you can get your things in your organization. So the more quicker you are, the best your uh, uh, say organization is, or your role is. I think I have to add somebody. Okay. Now, how these principles, if you look upon say holistic view, how all these principles can work holistically: your continuous flow, your pull systems, your value maximizations, and your standardization. So on the one hand, your continuous flow makes a smooth movement of your operations. Your pull system will produce only what is demanded. Your standardization will ensure that there is a consistency, and your value maximization will focus on your customer satisfaction. So all these things taken together gives you a picture like this. Let's take an example. सारे principles को एक साथ लेके let's take an example of Toyota. If you look upon continuous flow, Toyota has those cars that are being seamlessly assembled across stages, right? If you look upon pull system of Toyota, the production is triggered by the actual dealer demand. और अपार्ट फ्रॉम टोयोटा अगर अदर भी आप मैन्युफैक्चरर्स देखो आज के दिन, वो वंस कार ऑर्डर इज देयर देन ओनली दे मैन्युफैक्चर, नॉट लाइक अर्लियर जहाँ पे व्हीकल जो थी वो मैन्युफैक्चर हो जाती थी बल्क में। आज के दिन हैव यू नोटिस इन ऑपरेशंस में एक बहुत ट्रेमेंडस चेंज आया है। ऑटोमोबाइल में व्हीकल मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रही है until unless there is a order by customer. Am I making sense? Yes or no? Have you noticed it? Yes, sir. Right. वो those things are gone. कि नहीं, मैं गाड़ी अगर मैं मान लीजिए आई एम suppose I am this manufacturer
a car or an automobile manufacturer, तो मैं अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर करता चला जाऊंगा? नो, जब तक मेरे पास ऑर्डर नहीं आएगा। इतना स्ट्रॉन्ग पुल सिस्टम बना दिया है, नहीं आपको गाड़ी मिलेगी। असेंबली लाइन इतनी ज़्यादा कंटिन्यूस फ्लो में चलती है कि वहाँ पे वो सीमलेसली सारे स्टेजेस पे वैल्यू ऐड होता चला जाता है। स्टैंडर्डाइज ऐसा कर रखा है इन्होंने अपने सारे प्रोसेस को कि जितने भी आपके एसओपीज हैं वो सारे मीट आउट हो रहे हैं। स्पेसिफिकली टोयोटा में अगर देखिए तो एग्जांपल जो सबसे बड़ा कोट करते हैं हम आज के दिन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ अगर इवन द काइजन फिलोसफी भी अगर मैं लेके आऊँ तो टोयोटा सबसे पहले उसमें आती है। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, क्वालिटी, रिलायबिलिटी और कॉस्ट, इन तीन चीज़ पे मैं कस्टमर को मैक्सिमम वैल्यू दे सकता हूँ। मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इज हाई, प्रोडक्ट मेरा रिलायबल है, एंड कॉस्ट इज एज पर द कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड्स। अगर ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं तो आई एम डूइंग द बेस्ट ऑफ द थिंग, राइट। ओके, यहाँ पे एक बिफोर मूविंग अप, मैंने जब व्हेन आई टॉक्ड अबाउट टोयोटा, तो यहाँ पे एक जापानीज फिलोसफी है जहाँ पे मैं आई वांट टू कोट इट, जिसको बोलते हैं काइजन। टोयोटा इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज द अर्लियर इम्प्लीमेंटर्स एंड फेमस फॉर काइजन। काइजन को बोलते हैं तो उसका नाम ही है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे काई एंड जेन, काई मीन्स change and zen means for the betterment. So how you can continuously improve your systems by making certain changes that could ensure betterment for your customers. So चेंज हमेशा ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा सा कोई चेंज लेके आ जाओ। चेंज कैन हैपन इन अ स्मॉल और एन इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट। कोई छोटा सा भी मैं प्रोसेस में अपने इम्प्रूव कर रहा हूँ, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रैक्टिकल वर्किंग उसमें भी काम देगी। बिकॉज बीइंग एन ऑपरेशंस मैनेजर टुमारो, ज़रूरी नहीं है मैं प्रोसेस को पूरा ही चेंज कर दूं और मैं उससे कुछ लेके आना चाहूँ, नहीं। कई बार छोटे से इनोवेशंस, छोटे स्मॉल चेंजेस, इट कैन मेक अ ह्यूज एंड से लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। सो यू नीड टू ऑलवेज एंश्योर कि मैं इंक्रीमेंटल चेंजेस लेके आता हूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस लॉन्ग एंड लॉन्ग चेंजेस। सो काइजन का प्रिंसिपल जो है वो बोलता ही है कि स्मॉल चेंज बहुत मेरे लिए मैटर करता है। कीप टाइनी इम्प्रूवमेंट्स, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व रखना ही रखना है आपको, चीज़ें आपको स्टैंडर्डाइज करनी ही है, वेस्ट को आपको हटाना ही हटाना है, और कंटिन्यूस फीडबैक लूप आपकी चलनी चाहिए। Continuous feedback loop where we are talking about improvements, we are talking about standardization, we are talking about repeating the same and the best of the processes. Kaizen ki cycle, if you look upon, it talks about PDCA, which is your plan, do, check, and act. So what are you planning? In your planning, you identify certain problems. While doing, you implement certain solutions. You check upon wherein you evaluate your results, and you act wherein certain standardized improvement is there. Why I related this with Toyota? Because Toyota had a problem wherein workers noticed that their tools were taking extra time to be located. See, this is one very small problem कि वर्कर्स के टूल्स जो थे वो प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज नहीं थे, अरेंज नहीं थे, लेबल्ड नहीं थे, एंड दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। तो काइजान से क्या हुआ कि उसके सिर्फ एक छोटे से एक्शन में जहाँ पे उसको टूल्स पे वर्क करा गया, एंड दे रीअरेंज्ड ऑल टूल्स क्लोज टू द वर्कर ergonomics और वर्क स्टेशंस जो भी उनके थे, एंड दे लेबल्ड ईच एंड एवरी टूल। तो उससे क्या हुआ, उनका टाइम डायरेक्टली रिड्यूस हो गया, वेस्टेज, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एंड दे वर एबल टू स्टैंडर्डाइज द न्यू लेआउट। सो दैट इज how your Kaizen say helps the organization to do that, right? तो यहाँ पे लीन, काइजन एंड कंटिन्यूस फ्लो, पुल सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, all these together, how this is how they work, right? Now when I am talking about these say supply chain optimization, herein I'm talking about how we can, like, optimize my overall efficiency
जहाँ पे मेरी सप्लाई चेन की बात करो तो मेरे बहुत सारे वेंडर्स आ जाएंगे। उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी में कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं कॉस्ट को कैसे कम कर सकता हूँ, मैं कोलैबोरेशन कैसे बढ़ा सकता हूँ अपने सप्लायर्स के साथ, मैं बेस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, और मैं रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें एक सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में मुझे ज़रूरत पड़ती है। जब भी मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात करता हूँ तो पहले चीज़, आज के दिन जब भी मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात करता हूँ तो पहला चीज़ मेरे दिमाग में आ जाता है कॉस्ट। सेकंड आ जाता है मेरे दिमाग में एफिशिएंसी एंड माय रिस्पॉन्सिवनेस। थर्ड मेरे दिमाग में आ जाता है सर्विस लेवल्स, मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो if you look upon your supplier collaboration, how close your coordination is and your partnership is with your suppliers, and wherein you can ensure certain smooth material flows. Uh, say yes, this is also one of the major problem which a lot of organization faces. That is, uh, say, are you like sharing the information with your suppliers? What level do To what level or extent am I sharing the information with my suppliers, and what kind of information I am like extracting from my suppliers? आज के दिन ऑप्टिमाइजेशन में ये इंफॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इफ इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, योर डिमांड फोरकास्ट इज परफेक्ट, your inventory levels will always be maintained, and at the same time you won't be moving or going towards the lean, right? वो आपका वेस्टेज मैक्सिमम आपका कंट्रोल में रहेगा। जैसे कुछ, अगर मैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सबसे पहले मेरा दिमाग सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में आता है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट इज वन सच एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि सप्लायर्स के साथ बहुत क्लोजली कोलैबोरेट करके सारी चीज़ें करती है। इंडिया में प्रॉक्टर एंड गैम्बल पैरा नाम आता है, जहाँ पे वो सारा रियल टाइम इंफॉर्मेशन, इवन उनके पास बेस्ट ऑफ द ईआरपीज है जहाँ पे वो वेंडर मैनेजमेंट, इन्वेंट्रीज और ये सारी चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करते हैं। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी, अगर आपके सॉल्यूशंस आप टेक्नोलॉजी में ढूंढ रहे हैं तो एक सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए बेस्ट है आपके लिए पास किया है कि आपके पास परफेक्ट ईआरपी सिस्टम होना चाहिए। आज की बात करो 2026 एंड बियॉन्ड, this should not be a, I would say, a normal ERP. There should be AI and analytics. It should have IoT sensors. It should have blockchain. uh there's a supply warehouse management का एक popular video है, I'll share it with you in YouTube. Let me share it with you, it's very interesting. Just a second. Where in Amazon, it is like your Amazon is say this video talks about the overall warehouse say scenario wherein your Amazon, it is say providing you with the latest say overall stock information and how robotics they are taking control of it. So give me a second, let me share that interesting video with you. Just okay. Is it visible? Just see this.
मैं देखो आपका तो फोन नहीं उठा रहा। It waited 2 days in the harbor. For years, Amazon has chartered its own cargo ships, a tactic that retailers like Walmart, Home Depot, and Costco are trying this season. Amazon is also making its own containers, doubling down on workers and warehouses, even leasing long-haul planes for the first time to expedite high-priority goods from China to the U.S. They've been anticipating this. So they've been taking steps since 2020 to alleviate the issues that other retailers are going to have. So Amazon will not be as impacted as other retailers, but they're not immune to this. Amazon has seen a 14% rise in out-of-stock items since the start of the year, and prices on the site are up an average of 25%. The consumer has been feeling price increases in everything that they're purchasing. I mean, ultimately, when there's an increase in the cost of transportation, it gets passed down to the consumer. We talked to former Amazonians, maritime lawyers, and supply chain experts about all the bold but costly ways Amazon is trying to skirt the shipping delays plaguing other retailers this holiday season. Across every node of the complex, winding shipping journey, Amazon has been investing tens of billions to control as much of the process as possible. The more Amazon controls each node, the less it has to pay outsiders like UPS and the US Postal Service to ship its goods, and the less vulnerable its goods are to delays impacting the rest of the industry. Amazon always understood they didn't want to be the largest retailer, they wanted to be the largest logistics company. Amazon spent more than $61 billion on shipping in 2020, up from just under $38 billion in 2019. And Amazon is now shipping 72% of its own packages, up from less than 47% in 2019. And the more Amazon ships, the more data it gathers at every potential pain point of the process. They're watching what's going on an hourly basis globally. So when anything changes in terms of a cost increase of one mode of transportation versus another, then Amazon has the ability to say, you know what, shipping container is so high, it's actually cheaper now for us to fly product via a cargo aircraft. Let's break down the complexities of the supply chain by looking at the journey of a holiday gift ordered on Amazon. Months or weeks before your order, Amazon uses data to predict what will sell and where, and orders those items early, at bulk prices, often from China. There, Amazon packs the bulk orders into shipping containers and orchestrates the best journey across the ocean based on the value of the goods and where they need to go. This step is referred to as first mile. Most often, the shipping containers are loaded onto massive 14,000 container cargo vessels, the most cost-effective option, sharing space with goods from up to thousands of other companies. About 40% of the time, the vessels are headed to the ports of LA or Long Beach, on a journey taking between 25 and 40 days right now, at least 10 days longer than normal. Once there, they typically sit for days, and right now up to months, waiting for available dock space and workers. Once there's availability, port workers unload the containers onto trailers or chassis, which are also in short supply, then move the containers around on port property until they're ready to be picked up by one of Amazon's 50,000-plus semi-truck trailers or contractors, and brought that middle mile to one of its 260-plus fulfillment and other facilities. It's stored here until you place an order, and one of Amazon's 260,000 global drivers or its partners at UPS or the Postal Service pick it up for that last-mile delivery. The first real bottleneck happening in this process is where to put the bulk orders of goods for their journey across the ocean. A decade ago, containers were in such oversupply that excess boxes were repurposed as houses and entire business parks. Now, containers are so scarce that the price to ship one has gone through the roof. Prior to the pandemic, it would cost about $1,200 to ship a container from China to Los Angeles. Today, it's about $20,000 for just one container. One of the reasons that there's a shortage of containers is just the imbalance of where trade is. And so if you have a lot of imports coming in, you're moving those containers from the port inland. And one of the challenges is then getting those empty containers back. So Amazon is making its own 53-foot containers in China, using a company called CIMC, which makes similar containers for Walmart. In early October, hundreds of Amazon's own containers arrived at the port of Houston on the Star Ligra.
Amazon has produced probably somewhere in 5 to 10,000 of these containers over the last 2 years. I've been tracking it. When they bring these containers in to US soil, once they unload them, guess what? They get to be used in their domestic system, in their rail system. They don't have to return them to Asia like everyone else does. By them creating their own containers, they are essentially guaranteeing that that equipment is going to be available for them. Lauren Began was working at the Federal Maritime Commission when Amazon first registered with the agency in 2015. The first indication it was exploring its own ocean freight business to give it more control over the shipping journey of certain goods. What if we had Tickle Me Elmo this year? Guaranteed you wouldn't be able to find it anywhere, because that would definitely fall victim to the congestion that's happening out there right now. But that would be an example of something that would give you a competitive edge if you were to be able to provide that good faster. Amazon wouldn't disclose details of its ocean freight program, but says it's increased ports of entry by 50% this season, expanded network partnerships, and doubled container processing capacity. Amazon and other retailers are getting creative with ocean freight, from repurposing old vessels and chartering their own, because congestion at the busiest U.S. ports is at record levels. This is really taking a lot of capacity. The port of Everett, Washington for. Okay, so let me skip this. Right, so this is what Amazon is doing, right? By doing this, do you know how much, say, orders Amazon processes per day? The overall, see, this is one company which was like earlier into, say, kind of a retailing. Then from retailing, it has moved towards becoming a global giant in terms of providing, say, the overall logistics, right? Wherein today, Amazon has a network of, say, almost more than 1,000 facilities, 1,000 plus facilities worldwide, wherein it is like processing these orders from across 1,000 plus cities. And at the same time, every day it is like having this kind of a business model. No, see how it has become such a huge logistics giant, wherein it is able to provide a kind of same day delivery to the consumer. So ये जो concept है ना quick commerce का, so Amazon is one such organization which has pioneered or which has stepped into this kind of an concept, and it has able to create one of the global logistics. So this is how the uh, I think this is one of the example wherein classical example wherein you can say that an organization not essentially started off with retail, but today it has landed up to being say logistics giant, wherein it is competing against organizations like Walmart, Alibaba, who has those kind of supply chains. But this particular organization, it has disrupted those supply chains and it has created its own network. So that is the power of say Amazon, wherein no, can you like say understand the gravity, no, wherein an organization is able to say deliver billions of deliveries on same or next day. This is the kind of supply chain. Could be backward, could be forward. This is the kind of supply chain which a particular organization has been able to create, right? So Amazon is one such example. Technology. From this video, you would be able to comprehend, no, the kind of technology which Amazon is using. Everything. It has those kind of data points. आज के दिन में जितने मेरे movements हैं, even the customer consumer movements on the web, it creates certain sort of data points for the
organizations, retailers like Amazon. So they collect those data points, they work on those data, and whatever say order processing, anything comes from the consumer, it processes those kind of data. So this is how say Amazon it is able to do it. It is able to say um, complete and fulfill the orders. It is able to have the best of the say warehouses or the centers. It is able to uh, transport goods worldwide by via ship, via flight, via air or waterways. It is using all transportation medium to transport its goods, roadways, last mile delivery, wherein it has its own kind of a network, wherein it is able to create that kind of a last mile delivery for their customers. So if you look upon at the Amazon, it is able to create that kind of no huge seller ecosystem, wherein this particular seller ecosystem uh, it helps Amazon to say, I would say that it helps Amazon to say create or converge say more than 20 to 25% more sales than an ordinary sales which an e-commerce company or Amazon by fact can do it. So that is the power when you are using the technologies, you are using the data points, you are using the all sorts of mode of transportations. You have your all your vendors, customers, everything in one ecosystem, one platform, one ERPs. You have your say all data points being utilized by your data analyst. Your data analyst gives you the report and working on each data point. So that is the power of technology. That is the power of say all those components which are important in an say supply chain ecosystem. So this is one classical example. That's why I shared it with you. Now moving back to the presentation, let me share my presentation with you once again. I hope this particular presentation has been, this particular video has been understood and what I tried to convey to you. Hope you got it. Yes, sir. Yes, sir. Great. Now moving on to next, that is your how you can drive your operational excellence in terms of my continuous improvement in terms of the overall efficiency. Why I use this particular word leadership commitment? Why is it said that leadership commitment is absolutely essential while driving the overall operational excellence for any organization? Let's see what you guys can bring to the table. Yes, anybody? Bharti, your view on this. Why leadership commitment is important for operational excellence? एक लीडर नहीं चाहेगा तो क्या ऑपरेशनल एक्सीलेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं अचीव कर सकती है? उसके लिए एक लीडरशिप के कमिटमेंट की क्या जरूरत है? यस, एनीबॉडी? कम ऑन गाइस. सर. सर हाँ जी बोलिए आप. सर लीडर ही डिसाइड कर सकता है ना कि हमें कहाँ जाना है नहीं जाना है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो लीडर जो भी टॉप मोस्ट सीईओ या एमडी या जो भी सर फाइनेंशियल में सीएफओ है, तो वो जब तक डिसाइड नहीं करेगा तब तक सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किधर जाना है वो नहीं पता चलेगा ना सर, एम्प्लॉय कितना भी काम कर ले. राइट, वन पॉइंट टेकन. सेकंड, भारती आप बोल. हाँ जी. लीडरशिप में सर हमारे को अपने ऑर्गेनाइजेशंस जितने हमारे मैनेजर्स वगैरह है और भी है जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह है, उनके साथ भी तो हमारे को स्ट्रेटजी बना के कमिटमेंट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. राइट, नोटेड. और व्हाट एल्स? Okay. When I say operational excellence, and the first and foremost, I look upon leadership commitment.
एक टर्मोलॉजी देखिए, I've used very critically, that is innovation. I use continuous improvement. I use performance measurement. ये सारी चीजें पॉसिबल है ही नहीं. Leader is somebody who drives innovation. Leader is somebody who drives continuous improvement. Leader is somebody who ensures that your operational processes are quite robust. Your operational processes are agile. This is the responsibility of a leader to ensure that these things do happen in your organization. So, from a leader, to have a very sound and the perfect processes, you need to ensure that your leader should have a commitment. Your leader should drive the innovation. Your leaders needs to have the employee involvement. हर चीज अगर मैं सेंट्रलाइज कर दूंगा, अमेजोन में अगर हर चीज सेंट्रलाइज हो जाती तो आज अमेजोन अमेजोन नहीं होती. एक इसका क्लासिकल एग्जांपल है जी. सर इसका एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे अगर गुड लीडर होता है तो वो जो हमारे एम्प्लॉयज वगैरह होती है और जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस होती है, जो डिसीजन मेकिंग होती है, उस पे भी तो वो होता है ना इफेक्ट कंपनी के लिए. हाँ बिल्कुल. क्योंकि ये अगर हम ऑपरेशनल एक्सेलेंस में अगर देखें तो ड्रिविंग में जो चल रहा है तो उसमें तो मेन है कि मेजर रोल लीडर का ही होगा कि एम्प्लॉय और परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देके और कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर भी थोड़ा बहुत फोकस करे, जिससे कि कंपनी आगे जा सकती है एज अ गुड लीडर. क्योंकि कहीं पे बैड लीडर्स जो होते हैं वो अपना देखने के बजाय एम्प्लॉय और परफॉर्मेंस नहीं देखते. एब्सोल्युटली राइट. इसके पीछे कुछ एक दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि अभी लेटेस्ट कुछ बुक्स हैं, आप जी. पढ़िएगा. गुड लीडर वर्सेस बैड लीडर्स, गुड स्ट्रैटेजी वर्सेस बैड स्ट्रैटेजी. ये सब थोड़ा सा हाई एंड बुक्स है, बट इसको आप पढ़ोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज टू हैव अ गुड लीडर, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी. एक अच्छा लीडर एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो आपके ऑपरेशंस को मैक्सिमम लेवल पे ड्राइव करेगा. राइट. इनोवेशन जैसे मैंने बोला ना, एग्जांपल दिया था, लाइक आई टोल्ड यू, टोयोटा का. बड़े बड़े इनोवेशंस क्यों करने हैं मुझे? मैं नहीं कर सकता बड़े बड़े इनोवेशंस. एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी लाइफ टाइम में बहुत बड़े बड़े इनोवेशंस एक साथ नहीं कर सकती अनटिल अनलेस आपके पास फिर कुछ एवेन्यूज है. आइदर गो फॉर को क्रिएशन, आप रेडिकल इनोवेशंस करिए ना, स्मॉलर पार्ट्स में आप इंक्रीमेंटल सॉरी इनोवेशंस करिए, स्मॉलर पार्ट में आप इनोवेशंस लेके आइए. आप परफॉर्मेंस को मेजर करिए, ट्रैक करिए एंड इंश्योर कि नहीं आपकी सारी चीज़ें हो रही हैं. एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करिए. अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी ड्राइव कर रहा हूँ या मैं कोई नई स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, मेरे कुछ गोल्स हैं और मेरे पास ऑपरेशंस मैनेजर का उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं सपोज मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और दिल्ली एनसीआर में मुझे सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बनना है, और मेरे कॉम्पिटिटर्स मान लीजिए 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा बनने के लिए सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर मुझे 1000 प्लस से 10% अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो आई हैव टू प्रोड्यूस 1100 गुड्स मिनिमम टू बी ऑन टू बी द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर. तो मेरा ऑपरेशंस मैनेजर बताएगा कि मैं सपोज सेम प्लांट पे क्या 1000 से 1100 आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ. क्या मुझे कुछ अपनी असेंबली लाइंस को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, क्या मुझे अपने वेयर हाउसेस को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है मुझे 1100 की, वो मैं कैसे अचीव करूंगा अगर मेरी स्ट्रैटेजी में operations manager, if suppose he is not there, I cannot achieve it. So this is where your operations manager and the involvement of your leadership is absolutely essential, right? यहाँ पे now we'll talk about certain important components. One such is component is your continuous improvement initiatives. So for an organization, you can have these continuous improvement initiatives in terms of say you can implement say Six Sigma, or you can have the PDCA cycles. You have those kind of learning cultures. So when I talk about
how I can improve the continuous improvements, how I can have the continuous improvement initiatives. So, if suppose my goal is to improve upon the overall quality, my goal is to reduce the cost, my goal is to enhance the efficiency and to build a learning organization. So, I can go for Six Sigma. I can go for PDCA cycles, which is your Kaizen approach, plan, do, check, and act. I can have those kind of a learning cultures, जैसे गूगल में बहुत strong है. So I can use these things. Six Sigma की बात कर रहा हूँ तो completely data driven methodology, जहाँ पे वो क्वालिटी को इतना एनहांस करती है कि वो डिफेक्ट्स को एकदम मिनिमाइज कर देती है. So you almost achieve near perfect quality in your product. You limit your defects to almost 3.4 per million opportunities. And how you do that? You define, you measure, you analyze, you say improve, and you finally control. Six Sigma के जैसे कुछ organizations, Motorola started off with it. बात करूँ जनरल इलेक्ट्रिक की, तो जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने मैन्युफैक्चरिंग में से सिक्स सिग्मा लगा के एंड इट हैज़ एबल टू रिड्यूस से डिफेक्ट्स, जिसकी वजह से जनरल इलेक्ट्रिक की बिलियंस ऑफ कॉस्ट रिड्यूस हुई. राइट. सो सिंपली, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के डिफेक्ट्स अगर 5% से 0.1% पे आ जाती है, राइट, 5% से 0.1% में डेटा और प्रोसेस को डेटा यूज करके और प्रोसेस को रीडिजाइन करके, देन इट कैन क्रिएट वंडर्स इन द मार्केट. राइट. सो सिक्स सिग्मा की फिलॉसफी यही है. सिक्स सिग्मा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, इफ सपोज एनी ऑर्गेनाइजेशन इज बीन सर्टिफाइड बाय सिक्स सिग्मा, तो आप वहाँ पे नंबर 1, पहली चीज आप मान लीजिए वेस्टेज है ही नहीं. वहाँ पे क्वालिटी जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे, डिफेक्ट्स है ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. राइट. अब सपोज मैं एज एन ऑपरेशंस मैनेजर, अब मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ. मैंने साहब कहा कि सिक्स सिग्मा में लगा के ये टूल्स है, मैं सिक्स सिग्मा, आप मान लीजिए, एक आपको मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो रियलिटी में, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस है. अब उसने कहा है मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी के लिए सबसे ऊपर लेके आना है. कुछ मत करिए. यू आस्क फॉर सिक्स सिग्मा, these vendors companies, ask them to audit your organization. अगर सिक्स सिग्मा ऑडिट कर रही है और वो इम्प्रूवमेंट बता के री ऑडिट में आपको सिक्स सिग्मा अप्रूव कर दे रही है, आपका प्रोसेस 100% डिफेक्ट फ्री, आप क्वालिटी में नंबर 1 हो गए. राइट. सो वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन विल टेक दिस. ऑपरेशंस मैनेजर का काम है कि वो प्रोसेस को इम्प्रूव कराएगा, वो डिफेक्ट्स को मिनिमाइज करना शुरू करेगा, अपने सारे एक एक प्रोसेस को बैठ के he'll keep on checking कि मैं कैसे कैसे करके ठीक कर सकता हूँ. ये भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं चलो सिक्स सिग्मा इज अ वेरी कॉस्टली वे, मैं नहीं कर सकता हूँ अभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. गो फॉर काइजन. गो फॉर काइजन. हैव अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लूप. Plan, PDCA, plan, do, check, and act. Wherein you plan, you identify problems and solutions. ये प्रॉब्लम है X है तो इसका सॉल्यूशन क्या है Y, उसको आइडेंटिफाई करिए. छोटे स्केल पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए. चेक करिए आपके जो रिजल्ट्स हैं उसको आप इवैल्यूएट करिए, री इवैल्यूएट करिए. और जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो एक्ट करके, एक्ट में उस सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करिए और फर्दर जो भी इम्प्रूवमेंट है उसको आप प्लान आउट करिए. लास्ट इज योर लर्निंग कल्चर, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो उसके ऑर्गेनाइज से एम्प्लॉयज, बिकॉज एम्प्लॉयज contribute towards an organization, so they define the organizational culture wherein you need to, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एक लर्निंग कल्चर है तो मेरे यहाँ कंटिन्यूस लर्निंग है. मेरे पास नॉलेज शेयरिंग होगी जहाँ पे एक वर्कर, एक एम्प्लॉय मेरा दूसरे एम्प्लॉय से नॉलेज शेयर कर सकता है, एक नॉलेज बेस बनाता है, एक नॉलेज क्लाउड बना सकता है, and he can share the knowledge across the organization. एक्सपेरिमेंट्स होंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, इनोवेशन वुड बी एट द हाईएस्ट लेवल अगर मैं लर्निंग कल्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर रहा हूँ.
as an operations manager tomorrow, you need to ensure कि अगर learning culture बनाना है तो मेरी organization में continuous training programs होने चाहिए. Everybody should be open for communication. Your leaders should be, जो भी आपके managers हैं, leaders हैं, they should be ready to take up suggestions. They should always say encourage people to innovate. हम हर चीज को ABC प्रोसेस से ही क्यों करते हैं? Why can't we move towards X, Y and Z? Why can't we do it like D, E and F way? Why can't we do it like H, I, J way? Why can't we have that kind of a process? हमेशा मैं एक ही प्रोसेस को क्यों लेके चल रहा हूँ? अगर if there is a scope, let's innovate, let's create something out of it. फेलियर से आपकी ऑर्गेनाइजेशन सीखेगी, आपके एम्प्लॉय सीखेंगे, एंड ये रियलिटी है. इनोवेशन पहली बार में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं अचीव कर लेती है. मैं 5 चीजें इनोवेट करूंगा, 4 चीज या 3 चीज में फेल होऊंगा, एंड दैट इज रियलिटी. वो फेलियर आएगा ही इनोवेशन के साथ. बट दैट इज वेयर द लीडरशिप कमिटमेंट, ये लास्ट बैक स्लाइड पे जाता हूँ. That is where your leadership commitment comes into picture. अब लीडर यहाँ पे बताएगा कि आपको whether you have to stick, you have to re-engineer, re-innovate, or you go into isolation and you shut down the process and you continue with the mundane way of working जो मैं करता आ रहा था, मैं उसी को फॉलो करता हूँ. यहाँ पे लीडरशिप कमिटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा, राइट? So this is all pertaining to your Unit 1 specifically. If you have any questions, I would be happy to answer it. All questions are welcome. Yes, any questions, please, till now? Do ask. Okay, now I'll move towards a case study. Let me share this case with you. Okay, so now you have to read this case study and then you have to answer this question. Let me. How should I share it with you? Okay, I'll try to share it in a document. Okay, fine. Let me just. Case study. View. Can you see this case study?
Yes, please let me know. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. this is a 2-page case study. What you can do, take a screenshot of these 2 pages. Take the screenshot of this. Take a screenshot. Have you done? Are you done? Now take the screenshot of this particular screen too. Done? Yes, sir. Okay, great. Now solve. I want the answer for all these 5 questions. We need to discuss this. So read, this is a small caselet. Read this. This is about strategic misalignment in a premium electronics manufacturing. Read the scenario and then we'll discuss. So this scenario talks about a growing Indian consumer electronics company called as Auralix Technology, which has repositioned itself from, say, mass market brand to a premium smart device manufacturer, wherein it has started to target people from the urban manufacturing. And this strategic shift was driven by the competition from, say, low cost Chinese imports to improve the overall margins through differentiation. But the operation functions, they continue to operate under the legacy of cost efficiency model. So production lines, they are optimized for higher volumes and low cost. हर operations manager सबसे पहले इस चीज पे ध्यान देता है, वॉल्यूम बढ़ाओ, कॉस्ट कम करो. Second is using standardized components sourced from low cost suppliers with certain inconsistent qualities. The procurement team is incentivized based on cost savings rather than supplier reliability or quality performance. ये बहुत बड़ा एक issue है. So over the past year, company ने ये कुछ issues face करे, जहाँ पे 22% increase in product returns due to defects, 22% मेरे product ही return हो गए defects की वजह से. नेगेटिव कस्टमर रिव्यूज हैं जो कि मेरी ब्रांड के परसेप्शन को इफेक्ट कर रहे हैं. डिले हो रहा है मेरा लॉन्च करने में नए प्रोडक्ट वेरिएंट्स में. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पे मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो कि ब्रांडिंग पे फोकस कर रहा है, मेरा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट फोकस कर रहा है कॉस्ट कंट्रोल पे. यहाँ पे मेरे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए. एडिशनली मेरी जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो मिसअलाइंड है. मेरे ऑपरेशनल केपीआईज हैं वो एम्फसाइज कर रहे हैं थ्रूपुट एंड कॉस्ट पर यूनिट पे. मेरे मार्केटिंग के केपीआईज हैं वो एम्फसाइज कर रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ब्रांड इक्विटी पे. अब एक नया सीईओ आता है एंड ही वांट्स टू रिकॉग्नाइज द ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी इन इज he understands that my current operation strategy is not supporting the business strategy, and it is creating a kind of a overall strategic disconnect, and it is like making me uncompetitive, and it is killing me in long-term business. Now, first and foremost, the first point that comes to my mind, diagnose the strategic misalignment using my operations strategy framework. So I'll give you can prepare your points. I'm giving you 5 minutes to do that, or maybe take 10 minutes, 7, 8 minutes, not more than that. Prepare 2, 3 points for each. Diagnose the strategic misalignment using operation strategy framework. How should resource allocation and supplier strategy should change? Redesign the performance measurement system to ensure alignment. What structural changes are required for your cross-functional integration?
and propose a premium focused operational strategy model. So this is what you need to do. पहले वाले के लिए स्ट्रैटेजिक मिसअलाइनमेंट यूजिंग, आप सैंडकोन मॉडल यूज करना पहले वाले में, यूज सैंडकोन मॉडल. I'm giving you a hint also. Use sandcone model. यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको सैंडकॉन मॉडल का रियल इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा. हाउ योर सैंडकॉन मॉडल, अगर सैंडकॉन मॉडल के हिसाब से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली. यू कैन फिगर इट आउट. यस और नो? All those who were there on Sunday offline class sandcon model, you would be appreciating this first question. सर सैंडको मॉडल तो फिर क्वालिटी से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से क्वालिटी से? हाँ नहीं, आप संडे को थे ना? हाँ पढ़ा बताया था आपने. तो उसमें रिजल्ट क्या था सैंडकॉन मॉडल में? क्वालिटी से शुरू करते हैं, लेकिन सबसे हाँ जो टॉप पे क्या चीज आ रही थी? कॉस्ट आ रही थी टॉप पे सबसे ऊपर. कॉस्ट आ रही थी. हाँ कॉस्ट क्या था? उसके नीचे मैंने एक लाइन स्पेसिफिकली लिखी थी. वॉल्यूम और उसका था. नहीं, कॉस्ट रिजल्ट है. हाँ राइट. रिजल्ट ऑफ इफिशिएंसी. यस. अब यहाँ पे क्या करा इसने? कॉस्ट को बेस ले लिया. सबसे बड़ी गलती. राइट. ओके. स्ट्रेटेजिक मिसअलाइनमेंट जो है, आप सैंडकॉन मॉडल लेके एक्सप्लेन करना इसको पहले वाले को. लेट्स सी हाउ यू डू इट.
एक्सक्यूज मी सर, या भारती, अगर जैसे आप सैंडकॉन वाला मॉडल्स देखे तो उसमें जैसे क्वालिटी, डिसेबिलिटी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी देन कॉस्ट आ रहा है। एक सेकंड। और जो इसमें है, जो डायग्नोसिस स्ट्रेटेजिक है, ये ज्यादातर ये उसके फॉर्म में मतलब कॉस्ट को देख रहा है, क्वांटिटी को नहीं देख पा रहा। हाँ ये जैसे आपने स्टार्टिंग में ही हमें कल ऑफलाइन क्लास में बताया था ना कि जो ऑपरेशनल मैनेजर होता है वो डायरेक्ट सीधा कॉस्ट देखता है, जबकि नीचे राइट। से ऊपर को हुआ जाना क्या होता है। यहाँ पे? ओके यहाँ आई, पे उसने हाँ डिसेबिलिटीज निकालनी शुरू कर दी, बट उसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा। अब तुम देखो स्पीड में पिरामिड जो है सैंडकोन का, उसका फाउंडेशन क्या है बताओ? क्वालिटी। यहाँ क्वालिटी पे है, यहाँ पे क्वालिटी के क्वालिटी, लिए ये देखिए, ये जो मैं डिसेबिलिटी। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है हाँ क्वालिटी, राइट। जी तो फोकस क्वालिटी पे है ही नहीं, जी फोकस कहाँ है? ये देखिए जो मैं दूसरी चीज हाईलाइट करी है, जी लो कॉस्ट। तो मैंने अगर अपनी स्ट्रैटेजी में ही फोकस मेरा पिरामिड पे है ही नहीं, क्वालिटी पे, तो मेरा बेस ही नहीं है, राइट। तो उसकी वजह से क्या, मेरा 22% डिफेक्ट्स में इंक्रीज हो गया। मेरी डिपेंडेबिलिटी जो है वो कोलैप्स कर गई, क्योंकि मेरी क्वालिटी ही पुअर है। तो मेरी सेकंड लेयर भी खत्म हो गई। मेरी स्पीड जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई, क्योंकि मेरा मार्केटिंग जो है वो फोकस कर रहा है ब्रांडिंग पे और रैपिड लॉन्च में, जितनी जल्दी चीज़ें लॉन्च कर सकता हूँ, राइट। और जो बची कुची कसर है वो खत्म हो गई मेरे, क्या बोलते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट से, जो मेरे मार्केटिंग और ऑपरेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो शुरू हो गया, राइट। तो मेरी प्रायोरिटी जो है, जो टॉप पे अगर आप कौन देखिए तो कॉस्ट एफिशिएंसी, उसको मैंने अपनी प्रायोरिटी बना लिया है, जिसकी वजह से मेरा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया, मेरे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए इंटर डिपार्टमेंट, मेरा मार्केटिंग ऑपरेशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी फेस्ड। और उससे रिजल्ट क्या हुआ? मैंने कॉस्ट एफिशिएंसी को फोर्स करा, तो मेरी क्वालिटी अनस्टेबल हो गई, कौन मेरा ब्रेक हो गया, राइट। जो मेरे सर कोई म, इंडियन मैन्युफैक्चर तो सर, यदि कंपटीटर का कॉस्ट को तो सर उसको तो देखना ही पड़ेगा ना सर। लेकिन सिर्फ कॉस्ट देखोगे, प्रायोरिटी क्या है? अपना क्वालिटी मेंटेन करते हुए सर, जो मान लीजिए। सैंड कौन पे वापस जाओ, भूल जाओ ये चीज, सैंड कौन पे वापस जाओ, और पहली चीज मैंने क्या बोली थी, क्या देखनी है? सबसे पहले क्या देखना है? क्वालिटी सर देखेंगे, लेकिन कॉस्ट, यदि कंपटीटर यदि कॉस्ट कम करके यदि मार्केट में बेच रहा है तो हमारा सामान तो बिकेगा ही नहीं सर। बिल्कुल, तो वहां पे डिफ्रेंशिएट करो ना अपने को। ठीक है, मैं कॉस्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। उसमें तो फिर डिसेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे भी तो आ रहा है, स्पीड तो जो है, लेकिन स्पीड से पहले डिसेबिलिटीज और फ्लेक्सिबिलिटीज पे भी होगा इफेक्ट। हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्योंकि जैसे आपने कल हमारे को पिरामिड, स्टेप बाय स्टेप पिरामिड पे बताया, तो उसमें एक स्टेप अगर हम इधर उधर करते हैं या मिस करते हैं तो पूरा पिरामिड को मॉडल ब्रेक डाउन हो गया ना। ब्रेक डाउन हो जाएगा। हाँ, तो तुमने क्या करा, कौन देखो ना, इसमें क्वालिटी पे क्या काम किया है इन्होंने? इग्नोर। तो ध्यान इग्नोर ही कर दिए, क्वालिटी पे कॉस्ट पे काम सर तो नहीं किया, इन्होंने किया। बहुत बिल्कुल अच्छी। ध्यान नहीं दिया है, कॉस्ट पे बिल्कुल चलो इग्नोर कर तुमने, दिया। कॉस्ट पे किया तुमने, चाइनीज गुड्स को लेके उसको चेंज करा, फिर तुम दूसरे वेंडर्स ले आए, तुमने लाके चेंज करा, दूसरी जगह से सोर्स करा, लो कॉस्ट सप्लायर्स को ले आए। लेकिन उन लो कॉस्ट सप्लायर्स को, अब देखो जब मैं आउटसोर्स करता हूँ तो आउटसोर्स का भी स्ट्रैटेजी में एक चैलेंज होता है। मेरे जो सप्लायर्स हैं, जो क्वालिटी, अगर मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ तो क्या मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा? नो सर, राइट। कॉम्पिटिटर इसी चीज को ज्यादा इफेक्ट करके अपना वो कर सकते हैं। तो इसने क्या करा, एक एक पॉइंट टच ही नहीं करा, उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा स्ट्रैटेजिक मिसअलाइनमेंट हो गया मेरे ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी से।
Right? Do you got it? Okay. Yes, sir. Great. सेकंड में बात कर रहा हूँ, रिसोर्स एलोकेशन एंड सप्लायर स्ट्रैटेजी। रिसोर्स एलोकेशन मेरा जो है और मेरे जो सप्लायर की स्ट्रैटेजी मैंने चेंज करी, उसका क्या इम्पैक्ट आया। अब देखो, अब हम कॉस्ट के अंदर जाएंगे यहाँ पे सेकंड में। तो मैं पॉइंट आपको बताऊं, मूवमेंट क्या हुआ, सप्लायर सिलेक्शन का जो मेरा क्राइटेरिया था यहाँ पे, अगर आप देखो सप्लायर सिलेक्शन का क्राइटेरिया था, वो था, वो मूव करा लो यूनिट प्राइस से, मैं मूव कर गया हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। यहाँ पे मेरा जो लो यूनिट प्राइस था, राइट, हाई वॉल्यूम एंड लो कॉस्ट यूजिंग स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स सोर्स फ्रॉम लो कॉस्ट सप्लायर्स जिनकी इनकंसिस्टेंट क्वालिटी थी, राइट। लो चाइनीज इंपोर्ट से मेरा कंपटीशन शुरू हुआ, यहाँ से मेरी स्ट्रैटेजी मैंने शिफ्ट करी, और मुझे अपने मार्जिन्स इंप्रूव करने थे डिफरेंशिएशन के थ्रू। तो मैंने क्या करा, एक लेगेसी कॉस्ट एफिशिएंसी मॉडल मैंने अडॉप्ट करा, जहाँ पे मेरी जो प्रोडक्शन लाइंस थी वो हाई वॉल्यूम, जितना ज़्यादा वॉल्यूम बन सकता है जितने कम कॉस्ट में। इंडिविजुअल कॉस्ट प्रोडक्ट पे मैं नहीं गया हूँ, मैं सीधा वॉल्यूम पे चला गया हूँ कि 5,000 यूनिट, अगर मेरे 5 लाख रुपए में पहले पहले मेरे एक यूनिट की प्राइस थी 10 रुपये या 100 रुपये थी, एक यूनिट की प्राइस 100 रुपये थी, और मैं मान लीजिए सपोज 10,000 यूनिट बना रहा था तो 1 लाख रुपए है। अब मैं सीधा चला गया हूँ कि मैं 10,000 यूनिट बना रहा हूँ और 90,000 मेरी ओवरऑल कॉस्ट है, तो मैं वॉल्यूम और कॉस्ट में चला गया, रादर देन मैं इंडिविजुअल यूनिट की प्राइसिंग मैंने छोड़ दी। तो ये भी एक स्ट्रैटेजिक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है कि आप पर यूनिट कॉस्ट में जा रहे हो या आप टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में जा रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो पर यूनिट कॉस्ट में आपको कब जाना है और आपको टोटल कॉस्ट में कब जाना है, ये भी एक स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट लेके आता है। तो इसने क्या करा, इसने देखा वॉल्यूम, भाई मुझे कहीं से भी 5,000 यूनिट मिल जाए और मुझे इतने कम में मिल रहा है तो मैं उसको ले लेता हूँ, रादर देन कि मैं एक यूनिट की कॉस्ट ध्यान ही नहीं दे रहा, मैंने बल्क ऑर्डरिंग पे चला गया। ये मेरा सेकंड वाले का सबसे बड़ा इश्यू एंड प्रॉब्लम है। थर्ड वाले पे बात करते हैं, रीडिजाइन द परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम टू एंश्योर अलाइनमेंट। अगर मुझे अपनी परफॉर्मेंस मेजर करनी है, एक सिस्टम बनाना है, अब आप बताओ कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए जहां पे मैं एक सिस्टम बनाऊं ताकि मेरा मिस अलाइनमेंट खत्म हो जाए। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैं कंसिडर करूंगा? तो सबसे पहले तुम क्वालिटी पे काम करेंगे इसमें। परफेक्ट पोस्ट परफेक्ट से पहले हम क्वालिटी पे करेंगे, क्योंकि जो मार्केट खराब हुआ है हमारा, वो क्वालिटी ही हमें ठीक करके देगी। परफेक्ट परफेक्ट। दूसरा? सप्लाई पे, दो पे हमें मेन काम करना होगा, जिससे कि कस्टमर को ज़्यादा वेट ना करना पड़े हमारे प्रोडक्ट का, टाइम पे हम उसे पहुंचा सके। गॉट इट, परफेक्ट, दोनों चीज एक्सेप्टेड। और कोई पॉइंट? और भी इसमें कुछ काम करने की जरूरत है, और बताओ कैसे अलाइन कर सकता हूँ। सर जो प्रोडक्ट में थोड़े से मेजर चेंजेस करके लो कॉस्ट में भी डाल सकते हैं, हम्म। जिससे और कि मतलब मार्केट में उसकी स्ट्रेटजी से दोबारा से फ्रेमवर्क में आए। ठीक है, और ये बता भारती, कॉन्फ्लिक्ट कैसे, कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना क्या जरूरी है? सर बिफोर केस को देखेंगे तो उसको, और अभी में देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज होना जरूरी है। अगर मार्केटिंग ऑपरेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो दिक्कत क्या है, रहने दो। नहीं सर, इसमें प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कॉस्ट इफेक्ट एफिशिएंसी मॉडल जो इसने करा। देखो मैंने एक लाइन हाईलाइट करी है यहाँ पे, आप फोकस देखो, दोनों डिपार्टमेंट का फोकस देखो, दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट करा है?
both are Yes, not sir. aligned with Yes, sir. अब आपका फोकस है ब्रांडिंग, मेरा टोटल फोकस है कॉस्ट। तो दो परपेंडिकुलर लाइन अगर खींच दीजिए 360 डिग्री एंगल पे, तो क्या वो कभी मीट करेंगी? सर नहीं कर सकती। तो पैरेलल चलती जा रही है। पैरेलल ये चलने की वजह से क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि हे वाई स्ट्रेटेजी बैरियर्स ही स्ट्रेटेजी आने जो है। शुरू सर, हाँ इसमें फिर बैरियर्स ही आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो पैरेलल लाइन पे जाएगी तो, क्योंकि वो एग्जैक्टली। अपने वे में चलेगा, वो अपने वे में चलेगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग। मार्केटिंग जो है वो ब्रांडिंग पे लगा हुआ है। इट इज वर्किंग ऑन ब्रांडिंग। मुझे ब्रांड करना है। किस चीज को ब्रांड कर रहे हो? जब प्रोडक्ट ही तुम्हारा, याद करो मैंने एक मार्केटिंग के लिए भी बोला था, पैरेटो प्रिंसिपल चलता है 80-20। 80% तो यस सर। प्रोडक्ट की खूबी है, यहाँ यस प्रोडक्ट है सर। तुम्हारा डिफेक्टिव। यस 22% सर। कस्टमर आपको वापस कर गया, मतलब अगर 10,000 प्रोडक्ट मार्केट में निकाला तो 2200 मेरे ही इन्वेंट्री में वापस आ गया। यस सर। कितने दिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर सकती है मार्केट में, ये बताओ। सर ऐसे सोचो, वैसे। हाँ जी। सोचो मैं 10,000, मैं कार के कंपटीशन में आया हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मैंने 10,000 गाड़ियां बनाई, 2200 गाड़ी मेरी वापस आ गई पहले ही उसमें। सर ओला बाइक के साथ जो हो रहा था सर। हाँ एग्जैक्टली देखो इसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके आया। यस। और इवन ये सारी चीजें इनिशियल ईवी में जो व्हीकल्स आ रही है उनके साथ भी हुआ है। सर ऐसा ओला उबर में भी तो हो रहा है, क्योंकि उबर पहले चार्ज कुछ और दिखाती है, बाद में चार्ज कुछ और लेती है, बट फेयर चार्ज उबर जो एक बार ही शो कर देता है, एंड तक वही लेता है। ओके। वो दूसरा चीज है। यहाँ पे ये ईवी की बात थी, इसने पॉइंट रेस करा, बात थी जो ओला इलेक्ट्रिक बाइक बाइक्स नहीं लेके आया था ओला। यस आग लग सर। जा रही थी और उसका कोई कस्टमर फीडबैक अच्छा नहीं था, कहीं पे वो जाने पे वो वो प्रोडक्ट सोचो, मुझे शुरू में लगा कि ये बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट है, बिजनेस मॉडल बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत ही हाई एंड और इनोवेटिव है, लेकिन वो फेल कर गई। अच्छा आपने याद दिलाया, अब नेक्स्ट क्लास में हम ओला वाली बाइक को डिस्कस करेंगे, इस मॉडल को, ये क्यों फेल हुआ। एक ओला और एक टाटा नैनो, दोनों का हम ऑपरेशन स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे, राइट? याद रखना आप लोग, नेक्स्ट क्लास में विल वर्क ऑन इट। ओके, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। व्हाट स्ट्रक्चरल चेंजेस आर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस फंक्शनल इंटीग्रेशन? आप बताइए। स्ट्रक्चरल चेंज मैंने बात करी है। एक कम्युनिकेशन बिटवीन, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे भी डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। या तो यदि कन्फ्लिक्ट है तो मान ली कि एक्सचेंज कर सकते हैं, मान ली कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, जैसे ऑपरेशन में कर रहा है तो मान ली मार्केट, तो वैसे तो उतना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोअर लेवल स्टाफ को मान ली कि एक्सचेंज कर सकते हैं ठीक है। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। और कैसे मैं क्रॉस फंक्शनल में अलाइन कर सकता हूँ? सपोज मैं बोलता हूँ मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट ठीक है, ब्रांडिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे फोरकास्ट करके कौन देगा? ऑपरेशंस वाला मार्केट फोरकास्ट कर सकता है? नहीं सर, स्ट्रेटेजी वाला या ऑपरेशन वाला करेगा स्ट्रेटेजी। मार्केट ही तो, मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही तो फोरकास्ट करके देगा, मार्केटिंग। राइट? ऑपरेशंस जो है उस फोरकास्ट करी हुई डिमांड को ही तो पूरा करेगा अपने प्रोडक्शन और प्रोडक्शन लाइन से। ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, ये अलाइनमेंट है ही नहीं। मार्केटिंग सिर्फ ब्रांडिंग कर रहा है, फोरकास्ट कर ही नहीं रहा है, दूर दूर तक कहीं फोरकास्ट की बात ही नहीं है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। इस चीज को चेंज लाना बहुत ही, मतलब इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, राइट? ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। हाँ, जो अब मार्केट लास्ट। डिपार्टमेंट है सर, हाँ वो उसके साथ ऑपरेशन के साथ शेयर करना चाहिए कि जो भी फीडबैक भी आ रहा है देखो ना, यदि ये अभी भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप ये फोकस देखिए ना, यहाँ पे एक लाइन में पूरा फोकस बता दिया डिपार्टमेंट का, वो सिर्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं। और क्योंकि ऑपरेशंस शेयर नहीं वाले, किया कोई। ऑपरेशंस का जो डिपार्टमेंट है वो कॉस्ट के पीछे भाग रहा है, राइट? ये सर स्ट्रेटेजी। फिर
हाँ इसमें हम एक स्ट्रेटजी ये भी अपना सकते हैं कि ऑपरेशनल को भी मार्केट के साथ रहकर भी काम करना चाहिए, एक पॉइंट अगर हम देखें तो। बिना उसके हो ही नहीं सकता। यस सर, क्योंकि अगर अगर हम एक पे फोकस करेंगे तो दूसरा भारती तो फोल्ड डाउन एक होगा। एक चीज बता। सपोज आप ऑपरेशंस हो भारती, ठीक है, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट हूँ। आप तो प्रोडक्शन देख रहे हो ना, यू आर प्रोडक्शन इंचार्ज। मैं बताऊंगा यस ना सर। मार्केट में कितनी डिमांड है भारती, आपको 100 यूनिट बनानी है, आपको 50 यूनिट बनानी है, आपको 10 यूनिट बनानी है, ये कौन बताएगा आपको? आप थोड़ी ना, आप मार्केटिंग में जाके आप सर्वे भी करोगे और आप एनालिटिक्स भी लगा के और आप डेटा लेके आओगे। मार्केट तो सर्वे तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही काम है। मार्केट सर्वे तो मार्केट वाला ही बता सकता है, प्लस हमारे को उसके साथ साथ रहकर काम करना चाहिए। वो तो दोनों को कॉम्बो तो चलना पड़ेगा। मार्केटिंग और ऑपरेशन अगर मिलके नहीं चलेंगे तो कंपनी ग्रोथ करेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केटिंग वाला रियल फीडबैक देगा ही नहीं मार्केट मांग क्या रहा है। तो ऑपरेशन वाला कर क्या लेगा? सिर्फ कॉस्ट को कम कर सकता है, क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब मार्केट मांग रहा है अभी कुछ और चीज और हम बना कुछ और रहे हैं, तो दोनों को तो वो चलना पड़ेगा साथ में। जो वर्क ऑर्डर रहेगा मार्केट में, वो यदि नहीं एक्चुअल वर्क ऑर्डर नहीं शेयर करेगा प्रोडक्शन टीम के साथ, तो फिर वो अलाइन नहीं हो पाएगा। अब रियल फीडबैक ही नहीं मिल रहा है मार्केट का कि हमारा प्रोडक्ट में क्या कमी आ रही है। हम लोगों को तो पता नहीं लग रहा है, ऑपरेशन वालों को तो हम तो अपना बेटर ही समझेंगे ना। अब ये मार्केटिंग वाला ही तुम लोगों को लगेगा कि हाँ ये चीज कमी है प्रोडक्ट में, अभी कस्टमर ये फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट। सर विदाउट मार्केटिंग ऑपरेशन स्ट्रेटजी भी कोई काम नहीं कर सकती, बिकॉज काम उसको अगर हम अपना बना भी दे देते हैं, तो मेन चीज है हमारे को मार्केट में अपना प्रोडक्ट की सेल मार्केटिंग कितनी हो रही होगी। दैट्स वाई तभी हम उसके हिसाब से अपना पीछे प्रोडक्ट को और उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं कि इसको कितना और हमारे को क्वांटिटी बनानी राइट चाहिए। राइट राइट। सर आई एम वेरी हैप्पी ऑपरेशन, आप यू ऑल आर लाइक टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजी, आप लोग स्ट्रेटेजाइजिंग की बात कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। हाँ सर ऑपरेशन वाला तो बेचारा दोनों तरफ से बीच में है ना। अगर सीओ से नहीं बना के रखेगा कंपनी के अकाउंटेंट भी परेशान, मार्केटिंग वाले से भी परेशान अगर सेम नहीं बनी हुई होगी। ये तो बीच में हो गया है ना। हाँ तो इसको तो अलाइनमेंट का काम है ना ऑपरेशंस की। जब मैंने स्ट्रेटेजी की बात करी है तो स्ट्रेटेजी तो अलाइन करेगी। सबसे बना के गुड रखनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन सर, है गुड कम्युनिकेशन इंटरनल डिपार्टमेंट का तो बना के रखना ही पड़ेगा सर। और गुड कम्युनिकेशन को भी मैं एक वर्ड चेंज करता हूँ, क्रॉस कम्युनिकेशन। हाँ ये सर सही है जैक। एक एक भाई स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। मार्केटिंग फोरकास्ट करके लाया तो प्रोडक्शन को पता है ना मुझे कितना बनाना है, फाइनेंस को पता है ना कितना मेरे पास वर्किंग कैपिटल है। लीन और सर ये सारी मार्केट चीजें ऐसे थोड़ी ना ले आया, कंट्रोल हो फाइनेंस जाएंगी। पैसा ही नहीं रहेगा। है जी। सर मार्केटिंग वाला काम ले आया, फाइनेंस वाला पैसा ही नहीं दे रहा है, वेंडर का पेमेंट ही हाँ नहीं तो कर नहीं रहा हो है, फिर सकता, नहीं हो सकता। वो कह देता है मेरे पास शॉर्टेज है वर्किंग कैपिटल का, अब आप क्या कर लोगे? आप इन्वेंट्री वो नहीं अपना ईगो प्रोक्योर पे कर पा रहे हो, रॉ मटेरियल नहीं ला पा रहे हो, तो बनाओगे कहाँ से? राइट। तो यहाँ पे क्रॉस राइट। फंक्शनल अलाइनमेंट इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रपोज अ प्रीमियम फोकस्ड ऑपरेशन स्ट्रेटेजी मॉडल। तो आपका अब ऑपरेशन स्ट्रेटेजी मॉडल कैसा होना चाहिए? बताइए। यू कैन टेक 2-3 मिनट्स, सोचिए। आपका यहाँ पे ऑपरेशन स्ट्रेटेजी मॉडल कैसा होना चाहिए, फोकस क्या होना चाहिए आपका? लीन लीन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं सर। ठीक है। सर हम इसको सैंडकॉन मॉडल के साथ साथ लीन के साथ भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके। सेंट्रल मॉडल और लीन का दोनों का और अगर यूज करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। सैंडकॉन मॉडल और ये और प्लस जो हमारी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो मतलब स्ट्रेटजी है, जो हमारी बातचीत है, वो थोड़ी सी मतलब इफेक्ट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट सेल मार्केटिंग की भी, प्लस हमारे ऑपरेशनल की भी। ग्रेट। फोकस क्या होना चाहिए मेरा? अब चलो 2-3 फोकस एरियाज बताओ, 3 फोकस एरिया
जो मेरे होने चाहिए। मैं लीन और सैंडकोन को अलाइन कर रहा हूँ, वहाँ मैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, पुल सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी ला रहा हूँ। यहाँ से मैं क्वालिटी और ये सारे पर्सपेक्टिव भी लेके आ रहा हूँ, डिपेंडेबिलिटी और कॉस्ट। मेरे तीन, इन दोनों मॉडल को जब मैं इन्फ्यूज करता हूँ साथ में, तो मेरे स्ट्रैटेजी के 3 कोर फोकस एरियाज क्या बन के आ रहे हैं? फर्स्ट तो सर हमारे को जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से वाला मार्केटिंग ऑपरेशनल मतलब मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर होगा मार्केटिंग से रिलेटेड, उससे थोड़ा सा बातचीत रख के देखना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितनी सेल्स और कितना प्रोडक्ट एलिजिबल है टू द मार्केट सेल में। ठीक है, व्हाट एल्स? फोकस 3 एलिमेंट्स मुझे बताओ, 3 एलिमेंट्स जो मेरे फोकस हैं। अब मेरे नए सैंडकोन को मैंने इन्फ्यूज करा है लीन मॉडल के साथ। अब मेरे जो 3 एलिमेंट्स कोर मेरे फोकस एरियाज निकल के आ रहे हैं वो बताओ। एंड सर मेरा पॉइंट जो सेकंड है वो है फिर इसके कॉस्ट पर भी आएगा इफेक्ट। ओके, वेरिएबल टेकन कॉस्ट, ठीक तो है। मैं 2 पे ज्यादा फोकस करके लेके चलूंगा। एक कॉस्ट पे चलूंगा, क्वालिटी पे और टाइम पे, 3 लेके चलूंगा। क्वालिटी और क्वांटिटी कॉस्ट, दोनों पे। ओके। क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे और टाइम पे। प्राइमरी फोकस कहाँ होगा? मेरा ज्यादा होगा उस पे, क्वालिटी पे। ओके, परफेक्ट। और और क्वांटिटी कोई साथ में किसी का? रखूंगा, तो ऑप्शन रखूंगा कि छोटा प्रोडक्ट भी है इसका, इतना मतलब ऑप्शन रहे कस्टमर के पास भी, कि अगर जो कोई वैसे कई बार फर्स्ट टाइम लोग ये देखते हैं कोई न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, एकदम मैं 1,000 का नहीं परचेज कर सकता हूँ, तो उसको 500 का 600 का परचेज करके देख लूंगा। ओके, सर पूल सिस्टम भी अप्लाई कर सकते। ठीक है। आप ज्यादा बनाना ही नहीं चाह रहे हो। फुल सिस्टम अप्लाई कर रहे हो तो आपके अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फोरकास्ट वही ला के देगा। सर क्योंकि उससे वेस्टेज कम होगा ना सर। हाँ बिल्कुल, आप बनाओगे ही नहीं ज्यादा तो फोरकास्ट बहुत परफेक्ट होना चाहिए ना। वो सही है सर। The value maximization so that dependability will be increased. ओके, गुड, यू गाइस आर मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। समथिंग एल्स विच वी हैव नॉट टच्ड, कोई ऐसे और कुछ मेरे स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक मॉडल में मैं कुछ और फोकस कर सकता हूँ? एनीथिंग क्रॉस एल्स विच? क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन सर, जो हम लोग डिस्कस किए थे। ओके, फाइन। So I think we have talked about a lot of good things. हमने पूरे operations की strategy frame करी। Today we talked about Amazon कैसे अपना सारा operations, सारा logistics कैसे manage कर रही है and how it is landed up एक retail organization global logistics की giant बन गई। We talked about these things. We solved one case study on जहाँ पे मैं पूरा operations के strategy की failures, improvements, मॉडल्स को कैसे मैं अपने ऑपरेशंस के इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सो आई थिंक डूइंग ऑल दीज थिंग्स वी स्टैंड टू कंप्लीट यूनिट 1 एंड seeing your application of knowledge, I can say that no, we are good to go with unit 2 in the next class or before the next class। मैं we get one offline also, तो वहाँ पे मैं 2-3 केस स्टडीज बहुत अच्छे अच्छे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। दैट विल बिल्ड अपॉन मेरा जो स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन है, फॉर्मुलेशन टू इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ से मैं बिल्ड कर सकता हूँ। तो 2 केस स्टडीज जो आपने बोला, जैसे ओला इलेक्ट्रिक वाला मैं एक ज़रूर लेना चाहूँगा, इट इज़ प्रिटी मच रीसेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट 1 or 2 केस स्टडीज आई विल टेक मोर। सो नेक्स्ट क्लास में विल ड्राइव केस स्टडीज, फर्दर केस स्टडीज, राइट? ओके सर ओके सर। सर इसकी प्लीज थोड़ा सा ये पीपीटीज वगैरह स्लाइड शेयर कर देना, क्योंकि ग्रुप्स में सबको चाहिए होता है, फिर बोलेंगे। मैं दोनों सप्लाई चेन एनालिटिक्स और ये वाली दोनों आपको भर्ती भेज देता हूँ अभी, आप ग्रुप में डाल देना है। जी सर, जी सर।
सप्लाई चेन एनालिटिक्स की अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसकी भेज देता हूँ मैं आपको, केस स्टडी भी भेज देता हूँ अभी, है आप दोनों शेयर ये कर दो ग्रुप पे। ठीक है सर। और सर या ओके तो आप फाइन। काम कर सकते हो कि आप उसको भी सारा डन करके एनालिटिक्स की तो एक साथ ही भेज दो, या अगर जैसे आपको श्योर श्योर, कंफर्टेबल। आपको जब whenever you require you can take it from me, I have everything in my database, right? ओके सर, थैंक यू। Okay guys, thank you so much, have a great evening, and see you in the next class with further more discussions on operation strategy. And thank you so much all of you for contributing in the case study and discussion, right? यस Okay. Okay, sir. Thank you. Good night. Okay Rohit, थैंक okay यू Bharti, सर। thank you Sir. everyone. Okay Rahul, thank you.